ऑल राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू प्रॉपर्टी इज वाज अ क्वेश्चन इन 2021 prelims, so it becomes important for us. Right to property, it was originally a fundamental right under Article 31, but it was later removed from the list of fundamental rights. It is now what? A legal right. So legal right किसके लिए अवेलेबल होता है? लीगल राइट जो है वो किसके लिए अवेलेबल होता है? जैसे हम राइट टू प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, सो बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, ओके, दोनों के लिए जो है ऑलराइट अवेलेबल होता है. So legal rights are those rights which are not there in part 3 of the constitution. Okay, and they have to be, you are very correct, legally enforced. So what is the current status before we talk about the background and history? If I talk about the current status, तो उसमें क्या है, 2021 prelims में they had asked one thing, and that was that this right to property, RTP is the right to property, is available to all. Okay, plus it is a legal right. What is this? It is a legal right available to all. Okay, अब हम देखते हैं evolution इसका. So between 1950 to 1978 it was a fundamental right under article 19(1) clause article 19 clause 1 clause F, और उसके बाद जो है article 31 के अंदर. So यहाँ पर क्या है, state could take private property but only with compensation. And after 1978 it was shifted to article 300A, that is outside part 3 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, पार्ट 3 में क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स आता है. सो बिफोर 1978 प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट. सो कोर्ट्स कुड स्ट्राइक डाउन एनी लॉ violating property rights. After 1978 it became a legal right. It was removed. सो ओरिजिनल पोजीशन की अगर हम बात करें, ओरिजिनल पोजीशन प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट कहां पर था? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, विच इंक्लूड्स राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, and it guaranteed individuals the freedom to own and transfer property. Now problem क्या थी? भले restrictions allowed था only in the public interest, problem ये थी they did not think this through. The constitution maker, although they had put the right to property, but at the same time the initial leaders or our freedom struggle leaders, उनका एक dream था. What was that dream? It was land redistribution. Now the zamindars, they were elites. उस समय के elites थे, पैसा अच्छा था उनके पास, because generationally they were rich. So they started to fund the party who were against the Congress. ओके, उसी में अब आपको अगर पता चलेगा तो स्वतंत्र पार्टी वाज मेड आउट ऑफ वेरी हाई नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स. ओके, सो इसमें हुआ क्या था, दैट अ लॉट ऑफ देम दे हैड ट्रांजिशन टू पॉलिटिक्स. पैसा तो था उनके पास, पैसा तो पहले से था, जमींदारी वाज अबॉलिश्ड, उनका जो है पहले का काम बंद हो गया था, लेकिन पैसा फिर भी था. दे वेर रिचर देन 99.9% ऑफ द पीपल इन इंडिया. So what had happened? They started to use that wealth to clog the judiciary. They started to put so many cases. They used to, put the lawyers on retainers, and the lawyers, they used to go to the Supreme Court and hammer the Supreme Court with so many petitions. Why? Why I'm saying Supreme Court? Can you tell me? Because it was a part 3 right. It was a part 3 right. It was justiciable. सो ये जो लैंडलॉर्ड का लॉबी बना था ना, स्पेशली इन यूपी बिहार वाला जो लैंडलॉर्ड का लॉबी था, दे यूज्ड, उनके लॉयर्स बैठे रहते थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एंड दे यूज्ड टू हैमर
the Supreme Court with petitions after petitions using Article 32. ओके, सो ये जो है आपको समझना होगा कि इन्होंने सोचा नहीं था, तो यही टसल स्टार्ट हो गया. सो आर्टिकल 31 क्या देता था? आर्टिकल 19, so it gave you the right to acquire, hold and dispose property. And Article 31, it gave you protection against property seizure. Okay. All right. So Article 31 protection against seizure देता था, so state could take away private property only after paying compensation. Now this is the problem. ये जो word है ना दोस्त, compensation, this was misused a lot because compensation is a very subjective word. What is a compensation? How you are going to compensate me? तो इसी वर्ड को लेके इतना प्रॉब्लम्स हुए थे, इसी वर्ड को बाद में हटा भी दिया गया. पहले वर्ड हटाया गया, फिर बाद में पूरा आर्टिकल 19 हटा दिया गया एंड आर्टिकल 31 को ले जाया गया. सो कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1952 का केस था. सो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट because it violated Article 31, the fair compensation rule. Okay. Land reforms laws for abolishing zamindari, feudal ownership were struck down using Article 31. लैंड सीलिंग एक्ट्स, उसमें क्या होता है? लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसमें यू कैन ओनली होल्ड अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ लैंड. एंड दिस इज द इशू वाई द ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट कम टू बिहार. बिहार में क्या था दैट जो जितने भी बड़े लैंड होल्डर्स थे उनको खत्म कर दिया गया ड्यू टू दिस लैंड सीलिंग एक्ट. एंड ए लॉट ऑफ स्मॉल 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 जो ओनर्स थे लैंड के, दे कुड नॉट एग्जीक्यूट द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉपरली. वेयर एज अगर आप देखेंगे पंजाब में, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था. पंजाब में दे स्टिल हैव दोज बिग लैंड होल्डर्स, बिग दोज बिग जमींदार्स. एंड उस केस में क्या हुआ? द ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट कम टू बिहार, इट स्टेड इन पंजाब एंड हरियाणा. वाई? बिकॉज बिग लैंड होल्डर्स कुड एग्जीक्यूट इट मोर फ्लॉलेसली एज कंपेयर टू द सबसिस्टेंस फार्मर दैट वॉज प्रेजेंट इन बिहार. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू वीकेंड राइट टू प्रॉपर्टी. पहले राइट टू प्रॉपर्टी को वीकेंड करना है, तभी ना लैंड आप रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ which added the ninth schedule to prevent courts from reviewing land reform laws. You guys know what is ninth schedule? मैंने क्लास में बताया है. Any doubt in ninth schedule? So just I'll refresh your memory. Ninth schedule में जो है, अगर आप कोई भी लॉ डालते, if you will put any law in the ninth schedule, what is going to happen? अगर आप ninth schedule में कोई भी लॉ डालेंगे, so what is going to happen is you cannot review that law. It becomes immune from judicial review. So this ninth schedule gives you immunity, but it was again struck down via which case? जल्दी से आप बता सकते हैं, सभी को याद होगा. आयार सीलो, आयार सीलो केस याद आया? 2007. ओके, अगेन आई एम सेइंग दिस दैट केसेस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज केसेस यू हैव टू कोर्ट इन GS2. GS2 में बिना केसेस के काम नहीं चलेगा. उसके पीछे मैंने रीजन भी बताया है. आप नहीं करेंगे, कोई करने के लिए तैयार बैठा है. इफ यू आर नॉट रेडी टू डू इट योर सेल्फ, समबडी इज देयर टू डू इट फॉर यू. ओके, एंड देन इट विल नॉट बी अ प्रिटी पिक्चर. बिकॉज दिस IR सीलो, इट हैज कम वर्बैटिम, वर्ड टू वर्ड. दे हैव आस्क्ड IR सीलो के बारे में ही पूछ लिया था. सो समबडी हु हैज नॉट रेड IR सीलो कैन ओनली ब्लफ. एंड इस टाइप के हाइपर स्पेशलाइज्ड केसेस में ब्लफिंग विल नॉट वर्क. आप सोच भी नहीं सकते कि IR सीलो होता क्या है. इट इज इट रिलेटेड टू समथिंग और अदर? तो नाइन्थ शेड्यूल आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे. ओके, सो ब्लफिंग जो है प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत काम कर जाएगा. मेंस में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इट इज बेटर टू लीव, बट इवन बेटर इज टू स्टडी. ओके, तो फोर्थ अमेंडमेंट फिर हुआ 1955 में. गवर्नमेंट कुड पे लेस कॉम्पनसेशन फॉर प्रॉपर्टी एक्विजिशन. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? बिफोर इट वॉज परमानेंटली थ्रोन अवे, 25th अमेंडमेंट आया था. सो 25th अमेंडमेंट, it changed the word compensation to amount, meaning the state could decide how much to pay. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब जरा यहां देखें आर्टिकल 31 में, यहां क्या लिखा हुआ है? द स्टेट कुड टेक अवे
private property only after paying compensation. Now, this word compensation, it was misused, or rather, it was used by the lawyers a lot to block the government attempts. तो इसमें क्या किया गया, कॉम्पनसेशन को हटा दिया गया और उसके जगह लिख दिया गया अमाउंट। ओके, यहां पर क्या बोला गया कि कॉम्पनसेशन से अब अमाउंट हम देंगे। नाउ अमाउंट इज फिक्स्ड, कॉम्पनसेशन इज सब्जेक्टिव। यस, ओके। सो कॉम्पनसेशन इज सब्जेक्टिव, तो वहां पर प्रॉब्लम थी, अमाउंट इज फिक्स्ड। तो जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, इन माय विलेज, जो मेरा पुश्तैनी घर है और जो एंसेस्ट्रल हाउस है, इट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ ए डैम। इट्स नॉट अ डैम, इट्स अ चेक डैम। ओके, तो चेक डैम बना रहा है। हमारे जो लोग रह रहे हैं, ब्लड रिलेटिव्स हु आर लिविंग देयर, दे हेल्ड ऑन। दे सेड कि नहीं नहीं, हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड वाज दे डिपॉजिटेड द मनी इनटू माय ब्लड रिलेटिव्स अकाउंट, एंड देन द पुलिस केम एंड देन दे टोल्ड हिम कि कल बुलडोजर चलेगा। ओके, सो ये चीज कॉम्पनसेशन रेजीम में नहीं हो सकती थी, ये अमाउंट रेजीम में हुई है। Okay, compensation is subjective, amount is fixed. Okay, so what is the fair amount? इसमें भी fair amount है, it is very good, 4 times the price of your land. Okay, agriculture land का 4 गुना प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगा। सो केशव नंदा भारती केस, इसमें एससी upheld that the power of state to acquire property but ruled that it cannot violate the basic structure of the constitution. So state can acquire property but without violating the basic structure. Now right to property finally क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। फाइनली इसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th अमेंडमेंट से हटा ही दिया गया। अब इस समय क्यों इतना सारा वो नहीं हुआ, वाई देर वॉज नो आउटरीच? इंदिरा गांधी करती तो आउटरीच होता, बट इट वॉज अ वेरी chaotic टाइम। जस्ट अभी हम लोग जो है, वी हैड केम आउट ऑफ द इमरजेंसी रेजीम। देयर वॉज यूफोरिया सराउंडिंग द न्यू गवर्नमेंट रिगार्डिंग मोरारजी देसाई। तो वो जब यूफोरिया होता है तो दे कैन टेक हार्ड डिसीजंस, और उसी हार्ड डिसीजन में इट इज पॉसिबल दैट दे रिमूव्ड द right to property as a fundamental right, and article 19(1)(f) and article 31 were deleted. Now article 300A was inserted in part 12, making right to property a legal right. तो अब ये जो है फंडामेंटल राइट रहा नहीं, ये क्या हो गया, ये जो है, अब ये जो है ये हो गया लीगल राइट विच इज अवेलेबल टू एवरीबडी। ओके, so please remember this, that they were hyper socialists. Okay, they were on paper hyper socialist, but they started to approach the United States. भले थे हाइपर सोशलिस्ट, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को जो है उन्होंने अप्रोच किया था। सो करंट स्टेटस की हम बात करते हैं। सो बिफोर 1978 इट वाज ए फंडामेंटल राइट, आफ्टर 1978 इट बिकेम अ लीगल राइट। कॉम्पनसेशन, yes, it was required before 1978, or after 1978 no guaranteed compensation, legally enforceable compensation है, but legally which is more powerful, constitutionally guaranteed compensation or statutorily guaranteed compensation? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कॉम्पनसेशन। ओके, इतना जल्दी कैसे लिख लेते हो आप लोग? मैंने बस कॉन्स्टिट्यूशनली, मुझे जितना टाइम लगा बोलने में उतना टाइम में आपने टाइप कर दिया। सो सम क्रेजी स्किल्स यू गाइस हैव। Anyways, government power to take property, it was limited before 1978. After 1978, more power. Okay, so government can take land for public purposes. Okay, so case law, state of West Bengal versus Bela Banerjee case tha. So SC ruled that compensation must be fair and not arbitrary, and this led to amendments weakening the property rights. Now, what is fair and what is not arbitrary? So is this line itself not arbitrary? क्या ये लाइन ही खुद आर्बिट्ररी नहीं है? हम्म? कि आप बोल रहे हैं कॉम्पनसेशन फेयर होना चाहिए, बट ये फेयर का कंसेप्ट ही आर्बिट्ररी है ना, है ना? आर्बिट्ररी। ओके, यस, ठीक है, क्वांटिफाइबल नहीं है। व्हाट इज फेयर फॉर मी? मैं बोलूंगा अरे सर देखो, 50 मीटर दूर ना एक पेट्रोल पंप है, और इधर में बोल रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। नहीं नहीं, मुझे तो 12 12 टाइम्स चाहिए द सर्कल रेट के। ओके, तो कौन डिसाइड करेगा? सबका अलग रोना धोना होगा। सरकार बोलेगी पैसा नहीं है,
जिसका लैंड जा रहा है वो बोलेगा इनफ नहीं है ना, दैट्स दिस इज द प्रॉब्लम. So in the Vaman Rao case, very important case by the way, Vaman Rao, SC upheld that the 44th Amendment confirming the right to property is no longer a fundamental right. Now it is a legal right. Okay. What is the present status? This is important. 2021 में पूछा था आपसे prelims में. So property as a legal right, आर्टिकल 300A में है. ए मतलब अमेंडमेंट से घुसाया गया है. So what does Article 300A say? No person shall be deprived of his property save by the authority of law. बहुत सिंपल चीज लिखी है कि no person will be deprived of his property except by the authority of law. तो इसमें एक प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको. क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है? प्रोटेक्शन मतलब आपको आर्बिट्रेरिली नहीं हटा सकते. जो जमीन कब्जा है ना, जमीन कब्जा जिसको हम कहते हैं, कब्जा कर लिया जमीन, दिस इज अगेंस्ट. सो अभी एक केस आया था वेयर अ वेरी प्रोमिनेंट SC ST मोर्चा प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन तेलंगाना, he had taken over the land of some small time businessman and his mother. So that person wrote to NHRC that my article 300A has been violated. Okay. So NHRC, it gave directions to the Telangana police, and Telangana police जो है, they went there and they executed the NHRC guidelines और उसको जो है हटाया गया. So protection मतलब क्या होता है? अथॉरिटी ऑफ लॉ. कैन द बाहुबली नेता बी अथॉरिटी ऑफ लॉ फॉर कब्जा करना आपके प्रॉपर्टी का? द आंसर इज नो. It is not an who is an authority of law. Can the district magistrate via an official notification get your property? Yes. Okay. So समझ गए who is. तो गवर्नमेंट कैन टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली थ्रू अ वैलिड लॉ. मैंने नोटिफिकेशन का है. ये सरकारी बाबू है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको भी लॉ फॉलो करके आपका प्रॉपर्टी छीन सकता है via a notification which is given by the power. Okay, this notification is generated by the power that is present in him. Okay, so no automatic right to fair compensation, please remember, and no protection under fundamental rights. You cannot approach the court. In the KT plantation case, SC ruled that compensation is not necessary unless it is arbitrary and unfair. Many states, they have their own compensation law. अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आती है? कॉम्पनसेशन इज नॉट नेसेसरी, बट डोंट यू थिंक दैट दिस विल बी अ वेरी बिग पॉलिटिकल इशू एंड दिस कैन लीड टू द डाउनफॉल ऑफ मेनी पार्टीज. सो होता क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, दे हैव देयर ओन स्टेट लेवल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस. सो किसी किसी स्टेट में 4 टाइम्स हो गया, किसी किसी स्टेट में 4 टाइम्स के ऊपर भी आपको जो है एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन गारंटी करते हैं. अमरावती में, अमरावती में, you know what is Amravati? It is the new capital of Andhra Pradesh. So they had sanctioned approximately some 2 lakh crore rupees कि 2 लाख करोड़ रुपीस लगेगा. उसमें से they are saying that 70,000 crore rupees will be earmarked for land acquisition alone. गिफ्ट सिटी में क्या हुआ था? यही चीज तो हुई थी. Majority 60-70% of the amount is not there for the highways and the buildings and all. 60-70% of the paisa, it is there for the land acquisition. So it is a big political issue. क्यों? Because गिफ्ट सिटी का लैंड किसका था? गिफ्ट सिटी का लैंड पाटीदारों का था. अगर पाटीदार को कॉम्पनसेशन नहीं मिलता तो भाजपा हार जाती नेक्स्ट इलेक्शन में. अगर चंद्रबाबू नायडू कॉम्पनसेशन नहीं देंगे आंध्र प्रदेश में अमरावती के लिए, तो दिस विल बिकम अ पॉलिटिकल इशू. सो मेनी स्टेट लेवल स्टैट्यूटरी लॉज आर आल्सो देयर व्हिच गारंटीज, ओके, व्हिच गारंटीज दैट योर राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड एज अ लीगल राइट. ओके, ऑल राइट. F1 सर्किट गौतम बुद्ध नगर वाला आप शायद बोल रहे होंगे, है ना? नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल सर्किट. यस. ओके, ठीक है, क्लियर है ये.